देखो राजा, क्वेश्चन नंबर 16. Amrit Limited issued 1,006% debentures of 100 each to Amit and Bhaskar, both were the promoters, for their services in incorporating the company. ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ second time ਵੀ ਆ ਦੇਖ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਅਮਿਤ ਐਂਡ ਭਾਸਕਰ each, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਰਹੀ 1000 ਡਿਬੈਂਚਰਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਪੁਆਇੰਟ ਇਜ਼ 1000 ਡਿਬੈਂਚਰਸ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਇਸ਼ੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ 1000 ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ, ਮੀਨਸ ਟੋਟਲ 2000 debentures are issued of rupees 100 each. Name is 6% debentures, but you are giving to a promoter for incorporating the company. यदि entry याद है, shares भी की थी, incorporation expenses debit और preliminary expenses और formation expenses. तीन नाम आपका सीखे थे, ठीक है। So entry क्या होगी यदि पहली चीज incorporation expenses account debit और preliminary expenses और formation expenses debit to promoters, and then promoters account debit to 6% debentures. दो एंट्रीज पाओ, दो एंट्रीज आओगी। इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस डेबिट टू प्रोमोटर्स अकाउंट डेबिट टू 6% डिबेंचर्स। डिबेंचर्स कितने थे बोलो? डिबेंचर्स 1000 या 2000 टोटल? 2000 ऑफ रुपीज 100 ईच, तो 2 लाख, तो 2 लाख दी दोनों एंट्रीज आओगी, सिंपल। फर्स्ट एंट्री दी नरेशन क्या होगी? इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस ड्यू टू द प्रोमोटर्स, और सेकंड क्या होगी? being debentures issued to promoters, debentures issued to the promoters, yes or no? Simple, कोई दिक्कत नहीं। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿਮਿਲਰ ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਸੀ like entry question number 26. Grown Limited issued 510% debentures of 1000 each as credited as fully paid up to the promoters for their service to incorporate the company. Same promoters वाला point, यदि पहली एंट्री बोलो क्या होगी? Incorporation expenses या preliminary expenses debit to promoters, then promoters account debit to 10% debentures. कितनी वैल्यू आओगी? 500 into 1000 means 5 lakh. तो पहली दो एंट्रीज क्लियर, यस और नो? उस तो बाद की लिखा they also issued 100 debentures, name is 10% debentures of rupees 1000 each, credited as fully paid up to the underwriters towards their commission. सो इतने खर्चे का नाम किया अंडरराइटिंग कमीशन। यदि एंट्री क्या आती थी? अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडरराइटर्स, एंड देन अंडरराइटर्स डेबिट टू 10% डिबेंचर्स, यस और नो? इन्होंने कितने डिबेंचर्स दे रहे? 100 ऑफ रुपीज 1000 ईच, तो 1 लाख दी एंट्री आओगी। मींस पहले जेडे प्रमोटर्स वाले होते 5 लाख दी एंट्री, दो एंट्रीज, और अंडरराइटर्स वाली 1 लाख दी एंट्रीज। एनी डाउट? श्योर? क्लियर? नेक्स्ट वन, question number 27. Bright Limited took over the assets of 6,60,000 and liabilities of rupees 80,000 of Star Limited for an agreed purchase consideration of rupees 6 lakh payable 10% in cash and the balance by the issue of 12% debentures of 100 each. पहली चीज assets कितने दे है? 6,60,000, liabilities 80,000, net assets 5,80,000, बट ਤੁਸੀਂ परचेज कंसिडरेशन कितनी पे कर रहे? 6 लाख। ज्यादा पे कर रहे घट? ज्यादा, मींस 20,000 क्या होगा? ज्यादा कद दोगे? इफ अदर कंपनी ਦੀ ਕਿਸੇ ਗੁੱਡਵਿਲ ਘੱਟ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਇਦਾ ਉੱਥੇ ਕੈਪੀਟਲ ਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ 20,000 ਦੀ ਗੁੱਡਵਿਲ ਆਏਗੀ, ਯਸ ਔਰ ਨੋ? ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਕਨਫਰਮ ਹੋ ਗਈ ਦੇਖੋ। ਔਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨਸ ਲਈ ਬੇਸਿਕ ਇੰਨਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਐਨ ਐਮਸੀਕਿਊ। ਸੇਮ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਦੱਸੋ ਗੁੱਡਵਿਲ ਜਾਂ ਕੈਪੀਟਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਿੰਨਾ? 20,000 ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਗੁੱਡਵਿਲ, ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ 20,000 कैपिटल रिजर्व, एक कोई और वैल्यूज ना दे दो गुडविल या कैपिटल रिजर्व। स्ट्रेट फॉरवर्ड एमसीक्यूज है जो अच्छी ओरल समझ रहे हैं, ठीक है। सो टेल मी, पे की कर रहे हैं कहते पेबल 10% इन कैश, 6 लाख का 10% में 60,000 यू विल पे इन कैश, कितना बचूगा? 5,40,000, ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ डिवेंचर इशू करो। क्लियर, यस और नो? सो बोलो पहली एंट्री की होगी? पहला इन द बुक्स ऑफ Bright Limited, entry number 1, assets account debit 6,60,000, आगे गुडविल भी आ रही, गुडविल भी पाओगे डेबिट 20,000, टू लाइबिलिटीज कितने? 80,000, एंड टू वेंडर, वेंडर का नाम स्टार लिमिटेड, कितना अमाउंट? 6 लाख। एनी डाउट?
फर्स्ट एंट्री मैच्ड, ठीक है। सेकेंड एंट्री बोलो, स्टार लिमिटेड नो 60,000 रुपीज मीन्स 10% कैश पे कर रहे हैं, स्टार लिमिटेड डेबिट टू कैश अकाउंट 60,000 डन, कितना बचे 540। थर्ड एंट्री के अंदर स्टार लिमिटेड डेबिट 5,40,000। पहली दो एंट्रीज इधर होगी, बट डिबेंचर इशू लेके क्या था उन्होंने राजा, केस 1 2 3 whether debentures were issued at par, at premium, at discount। मीन्स ਤੁਸੀਂ फॉर्मेट बना के एंट्री नंबर 1 पाओगे, एंट्री 2 पाओगे, उस तो बाद लिखोगे केस 1 केस 2 केस 1 अकॉर्डिंग थर्ड एंट्री, केस 2 अकॉर्डिंग थर्ड एंट्री, केस 3 अकॉर्डिंग थर्ड एंट्री। पहले दो दे ऊपर केसेस नहीं लिखने बिकॉज वो दोनों कॉमन एंट्रीज है। यस और नो, एंट्री नंबर 1 एंड 2 इज कॉमन। थर्ड एंट्री ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ केस नंबर लिखोगे 1 2 3 और ਉੱਥੇ एंट्री नंबर 3 ही पाई हो। यस और नो, केस 3 ਦੇ ਅਕॉर्डिंग थर्ड एंट्री, केस 1 अकॉर्डिंग पहला थर्ड एंट्री, सेकंड अकॉर्डिंग थर्ड एंट्री और केस 3 अकॉर्डिंग थर्ड एंट्री। क्लियर विद द केस? यस और नो? नाउ टेल मी, एंट्री कितना होगी? इफ द डिबेंचर्स वर इशूड एट पार, द स्टार लिमिटेड डेबिट टू 12% डिबेंचर्स, स्ट्रेट फॉरवर्ड 5,40,000। सेकंड एंट्री, स्टार लिमिटेड डेबिट 5,40,000 to 12% debentures and to securities premium। yes or no? Premium is 20%, बॉक्स बना के हो जाओगे। नेक्स्ट, थर्ड, स्टार लिमिटेड डेबिट 5,40,000, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स डेबिट टू 12% डिबेंचर्स। ਇੱਥੇ डिस्काउंट ਦਾ बॉक्स ਬਣੋ, ਹੋ ਜਾਊਗੀ कैलकुलेशन। विल यू एबल टू डू दैट? एक रफ देख सकते हो ਤੁਸੀਂ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫਰਸਟ ਐਂਟਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਨੀ ਬੇਸਿਕ ਜੀ ਆਊਗੀ, ਐਸੈਟਸ ਡੈਬਿਟ, ਗੁੱਡਵਿਲ ਡੈਬਿਟ ਟੂ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਟੂ ਸਟਾਰ ਲਿਮਿਟਡ, प्रॉपर फॉर्मेट्स हो जाओगे। स्टार लिमिटेड टू कैश 60,000 10% वालों पेमेंट हो गई। इस तो बाद लिखोगे केस 1 केस 2 केस 3। तो स्टार लिमिटेड डेबिट टू डिबेंचर्स लिख के 540 सिंपल, केस 1 हो गया। केस 2 स्टार लिमिटेड डेबिट टू डिबेंचर्स एंड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, डिबेंचर्स का नाम 12% से ओदा मैजिक बॉक्स बनाओगे प्रीमियम वाला, दैट विल बी 100 + 20 और स्टार लिमिटेड ਤੇ ਕੀ ਆਊਗਾ 120। तो ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਲਵਿੰਗ ਨਾ ਆਇਆ ਉੱਥੇ 4,50,000 and 90,000। और डिस्काउंट वाले केस स्टार लिमिटेड डेबिट डिस्काउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर्स, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆਈ 5,40,000 ਨਾਲ 60,000 and 6 lakh। But if I ask you number of debentures, then you'll divide the face value of total debentures with एक डिबेंचर कितने ਦਾ 100 each। तो फर्स्ट केस ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ डिबेंचर इशू ਕੀਤੇ 5,40,000 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ 100 ਕਿੰਨੇ डिबेंचर्स ਆਏ 5,400। दिस इज आल्सो अगेन एमसीक्यू नंबर ऑफ डिबेंचर्स ਲਈ, ठीक है। देन अगर ਤੁਸੀਂ 4,50,000 ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੇ ਤਾਂ डिवाइड बाय 100 4,500 डिबेंचर्स। थर्ड केस 6 लाख ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੇ ਤਾਂ 6,000 डिबेंचर्स। ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਹਰ केस। श्योर, इजी पैटर्न ਤਾਂ ਨਹੀਂ चेंज कोई अपना, सेम we followed for shares also and same we are following for debentures also। clear है yes or no? करो सॉल्व, then I'll check your notebooks, okay? कि कोई एरर तो नहीं है प्रेजेंटेशन। देखो राजा, नेक्स्ट क्वेश्चन 28, स्टार लिमिटेड took over the assets of 6,60,000 and liabilities of 80,000 of मून लिमिटेड। एसेट कितने दे लिए 6,60,000 दे और लाइबिलिटीज कितने दे लिए 80,000 दे। नेट क्या आया 580, किन्ने च लई 4 रुपीज 6 लाख। 580 वाली चीज तुसी 6 लाख च लई, मतलब 20,000 ज्यादा पे किते मींस 20,000 की है गुडविल, ठीक है, डेबिट से आओगे। देन कहते द परचेज कंसिडरेशन वाज पेबल एज, मतलब ये तो पेमेंट द टाइम काम आओगे। फर्स्ट एंट्री कॉमन आओ, फर्स्ट एंट्री विल बी एसेट्स अकाउंट डेबिट 6,60,000, गुडविल अकाउंट डेबिट 20,000, टू लायबिलिटीज 80,000 एंड टू वेंडर, वेंडर कौन है मून लिमिटेड, कितना 6 लाख आई आओगी फर्स्ट एंट्री। यस क्लियर, ठीक है। उस तो बाद पेमेंट ਦੇ ਅੰਦਰ केसेस गिवन ਸੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ केस 1 केस 2 ਬਣਾ ਲਏ। केस 1 says the purchase consideration was payable 10% in cash and the balance in 5,400 12% debentures of 100 each। मतलब 10% 6 लाख पे करने सी टोटल, ਉਹਦਾ 10% 60,000 का 60,000 ਦੀ एंट्री मून लिमिटेड डेबिट टू कैश, बाकी कितने बचे 5,40,000।
ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਤੁਸੀਂ 5400 ਡਿਬੈਂਚਰਸ ਇਸ਼ੂ ਕਰਤੇ 100 ਵਾਲੇ ਤੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਮੈਚ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਕੇਸ 1 ਇਜ਼ वेरी इजी ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਮੂਨ ਲਿਮਿਟਡ ਡੈਬਿਟ ਟੂ ਕੈਸ਼ 60000 एंड देन मून लिमिटेड डेबिट टू 12% डिबेंचर्स 5,40,000, बिल्कुल सिंपल। और नंबर ऑफ डिबेंचर्स आज कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है बिकॉज गिवन 54, ठीक है। नाउ केस 2 की कहंदा देखो, the purchase consideration was payable 10% in cash 60,000 वाली एंट्री सेम। आफ्टर दैट द बैलेंस कितना पे करना 5,40,000 का, कहते by issuing 4,500 डिबेंचर्स of 100 each issued at a 20% premium। तब एंट्री क्या होगी, मूल लिमिटेड डेबिट टू 12% डिबेंचर्स एंड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸੋਲਵਿੰਗ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਸੈਕੰਡ ਕੇਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸੈਕੰਡ ਐਂਟਰੀ ਦਾ ਸੇਮ 60,000, ਥਰਡ ਐਂਟਰੀ 5,40,000 ਡੈਬਿਟ ਕੀਤਾ ਮੂਲ ਲਿਮਿਟਡ ਨੂੰ ਟੂ 12% ਡਿਬੈਂਚਰਸ ਐਂਡ ਟੂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਮੈਜਿਕ ਬਾਕਸ ਦੀ ਨੀਡ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸੋਚੀਏ। ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੰਬਰ ਆਫ ਡਿਬੈਂਚਰਸ ਗਿਵਨ ਹੈ, किन्ने 4500 ऑफ रुपीज 100 ईच, तो 4500 इंटू 100 कितना आ गया 4,50,000, ओदा अमाउंट मिल गया। और अगर ओदा अमाउंट पता तो उत्ते 20% प्रीमियम लगा दो 90,000, और दोनों मैच करके कितना आ गया 540। मतलब इतने मैजिक बॉक्स की मैंने आज कोई नीड नहीं आई। क्यों नीड आती नॉर्मली, बिकॉज मैंने नंबर ऑफ डिबेंचर्स नहीं पता होंगे सी, आज पता था ओदा बेनिफिट मिल गया, ठीक है। सो एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन आल्सो। इस तो इलावा तुसी एक चीज याद करो, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ पॉइंट याद होगा, फ्रैक्शंस वाला क्वेश्चन सीगा कोई, डू यू रिमेंबर दैट? तुसी एक क्वेश्चन फ्रैक्शंस वाला भी कीता सी कोई, शेयर्स जिथे नंबर ऑफ शेयर्स डेसिमल्स च आ रहे हैं, ठीक है। वो वाला क्वेश्चन भी एक बार गो थ्रू कर लियो, डिबेंचर्स लेसन दे एट द एंड ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ वो क्वेश्चन भी डिस्कस कर लो। टुमारो विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इशू ऑफ डिबेंचर्स with terms of redemption। ਇਹਦੇ 6 cases है, we'll discuss those 6 cases पेपर आने ही आने 100%। समझ रही चीज, ठीक है। 2-4 क्लासेस लगाइए, डिबेंचर्स वाइंड अप करिए, देन विल स्टार्ट विद डिसोल्यूशन। ओके श्योर।